Hi guys, I'm Kavya And I'm Rashi, and welcome back to our channel. the Coffee Comfort Show. Yes, so we are back after almost 1 month. more than a month. More than a month. I think so. Okay. Yeah. So, how are you feeling and where were you? Where were we? Let's Okay. just quickly update you all. Yes. And then we'll move to Our the topic. Yeah, to our topic. Okay, so where were we? Yeah. Firstly, I would like to formally announce that this is going to be our season 2. Yes. And yes, and not just saying that it is going to be our season 2, You will see it. Yeah, there will be evidences and you will see them. We would like to say that this is going to be the space where you will feel empowered, where you will feel like, returning back to your home. Yeah? Would you At like least to add? we hope, and Yeah. we'll try to make it a space. So let me give a little bit of a background, Okay. So पहले हम लोग जो videos बनाते थे, they were all over the place almost. They Yeah, were we're related accepting to this. yeah, they were related to spirituality, they were related to personality development, they were related to some shows, reactions, and sort of everything. So we tried out everything, but Yeah. let us be very very honest that हमने सब ट्राई किया, हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, बट इट डिड नॉट फील सोल अलाइंड. Yes. एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर. सो Yeah. इसलिए हमने सोचा है जो हमें सोल अलाइंड फील होता है हम वो करें, एंड आवर कम्युनिटी विल फाइंड अस. एंड Actually, what happened was, जब भी कोई YouTube start करता है, मुझे लगता है We have to experiment. Yeah, we have to experiment and we have to try and test different things. Some things will work also, but then also if you are not finding it, soul aligned, आपको नहीं लग रहा है, this is not me, this is not what I want to showcase, then you always have a choice. yeah, So this is our choice, and we're making it. Yeah. And so let's get to the topic now. okay. So now we want to be very clear that this is a zone where we encourage positivity, healing, personal growth and development, and spiritual progress, spiritual growth, your spiritual journey. We are going through our journeys ourselves, but we are here for you also, so that if you sometimes ऐसा होता है ना कि हमें बहुत अकेला फील होता है spiritual Yeah. journey में especially. Especially. So yes. ये वो जोन है जो हम ट्राई कर रहे हैं आपके लिए बनाने के लिए, जहाँ आपको अकेला फील ना हो आपकी जर्नी में, जहाँ आपके साथ कोई हो, जहाँ आप शेयर कर सकते हो. एंड इट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल. अगर मैं जैसे जिनके सेशंस भी लेती हूँ क्लाइंट्स के, so she is a spiritual coach and I am a model by profession, model and a content creator. Yeah. But a deeply spiritual soul. And yeah, so that I is think actually वही मैं बोलना चाह रही थी. We are fortunate that we all, the family, is going through this spiritual awakening, and we are healing, and so we are understanding what is happening in each other's lives, right? बट बहुत बार बहुत ऐसा बार नहीं ऐसा होता है हाँ. कि जब आप हील कर रहे होते हो, आपकी हीलिंग जर्नी चल रही होती है, अगर आप फॉर्चुनेट हो, आप You will find your community. आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है. Yeah. आपका घर में अगर सब ही उस जर्नी पे आ जाए तो इट इज अ It डिफरेंट is थिंग. like heaven. बट क्या होता है, यूजुअली ऐसा होता है जो मैंने देखा है अपने नोन वंस के साथ या इन जनरल, इज़ कि आप जब हील कर रहे होते हो, आप जर्नी पे होते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरी फैमिली आ जाए, ज़रूरी नहीं है Yeah. आपके फ्रेंड्स आ जाए. Yeah. वो जर्नी काफ़ी अकेले हो जाती है, मतलब बहुत ही लोनलीनेस वहाँ पे आपको It is- फील हो सकती है. और आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट हैव दैट पुश. आपको कोई पुश नहीं कर रहा है, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, आपको कोई ऐसे नहीं कर रहा है कि ओके आई एम विथ यू, अच्छा तेरे साथ ये हुआ, आई हैव डेल्ट विथ समथिंग सिमिलर, मैं तुझे हेल्प कर सकती हूँ. ये नहीं होता है ये बहुत होता सारे नहीं लोगों है. के साथ. Yes. एंड आई थिंक दैट दिस थिंग, दैट हीलिंग can be a very lonely journey, is a very real thing. Yeah, it is absolutely real, because what happens is when you're healing, then you only know what is going on inside you, right? You only know that okay, something is triggering me so that I can heal it.
आप लोगों को एक्सप्लेन जो जो उससे बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं है, जिनने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की, आप उनको कुछ बताओगे वो समझ ही नहीं पाएंगे. व्हाट इज ट्रिगर्स, व्हाट आर दीज लिमिटिंग बिलीव्स, व्हाट आर यू ट्राइंग टू हील. समटाइम्स मुझे काव्या ने रियलाइज़ कराया कि मैं अगर किसी को बता रही हूँ ना कि ओके सो आई कैन सी दिस पैटर्न एंड यू हैव टू हील इट, तो मैं तो बड़े कैजुअली बोल देती हूँ कि ऐसा कर लेना ऐसा कर लेना. बट काव्या ने मुझे रियलाइज़ कराया कि लोगों को एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा होगा कि तुम व्हाट डू यू मीन बाय हील, ये हील कर लो वो हील कर लो. लोगों को वही काफ़ी को समझ नहीं आता है. बट दिस पॉडकास्ट इज नॉट फॉर दैट. दिस इज फॉर द पीपल who are healing, who are in their healing journey, who are in the process, and who are healing when no one around them is, you know. That is something that needs to be discussed. जो नहीं होता है, सब आपको बता देंगे कैसे हील करना है, क्या करना है, पर जब आप एक्चुअली कर रहे होते हो और जब आपके पास लोग नहीं हैं तब आप क्या करोगे. एंड मुझे लगता है कि although अपन के पास एक सपोर्ट है, बिकॉज गॉड विलिंग ऐसी जर्नी रही है कि सबकी साथ में आपकी हीलिंग हो रही है, बट तब भी इट इज़ नॉट लाइक यू एंड द अदर पर्सन आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग. आप लोग डिफरेंट डिग्रीज, हाँ डिफरेंट डिग्रीज पे हील कर रहे हो, डिफरेंट लेवल्स पे हो. कोई कहीं है कोई कहीं है, एंड देयर इज नो कंपैरिजन इन दिस, और देयर इज नो, फर्स्टली देयर इज नथिंग लाइक दिस इन स्पिरिचुअलिटी. एंड सो ये मैं कहना चाहती हूँ कि भले ही आप कलेक्टिवली कर रहे हो, आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल यू आर अलोन इन अ वे, यू नो. एंड ऑन अ सोल लेवल ऑफ कोर्स यू आर, everything is one, you know. And but still अभी मैं coming back to the topic, मैं ये बोलना चाहूँगी that firstly keep going. Yeah, you have to keep going because आप जब ऐसे जर्नी पे होते हो आपको ऐसा लगता है कि यार व्हाट इज द पॉइंट, मैं कितना भी पॉजिटिव रहने की ट्राई कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं सबके लिए अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लूँ, बट वो सामने वाला आके मुझे बुरा ही बोल रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, या मुझसे इरिटेट ही हो रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो व्हाट इज द पॉइंट. इट्स लाइक रहने दो, छोड़ो, मैं भी मिक्स हो जाता हूँ उसी में. एटलीस्ट दैट इज यू नो कंफर्टेबल, दैट इज फेमिलियर, यू नो. So the chaos is familiar. So you rather be in the chaos, in the chaotic situation than be out of it and be lonely. So मुझे लगता है healing takes guts, healing takes courage, because sometimes you won't be able to explain it to others what you are going through, but you have to keep going. Sometimes people will call you insane. They will say what is this, what are you thinking, what is this weird imagination or imaginary world of yours, but you have to keep going because it is making sense to you, so you have to keep going. If you believe in it, आपको समझ में आ रहा है कि yes मेरी ये जर्नी है. मैं आपको बता दूँ, सबकी सोल लेवल पे अकेली ही जर्नी है, सब का चीज़ें अलग हैं, कोई सेम चीज़ें करने नहीं आया है, और बिकॉज ये जर्नी सबकी अलग है आपको खुद ही डील करना पड़ेगा. अल्टीमेटली आपको कोई एक लेवल तक ही आपको कोई सपोर्ट कर सकता है या कुछ बोल सकता है. अल्टीमेटली यू हैव टू फेस योर ओन डीमंस, यू हैव टू गो टू द डार्केस्ट एंड द डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड एंड यू नो bring out those thoughts, surface them, heal them. It takes guts, it takes courage, and it takes time, so be patient with yourself. Yeah, sometimes people would come up to me and they say कि but मतलब कितने जल्दी हो सकता है. It is not a process. First of all, it is not like 2 + 2 = 4. It is not like that. Everyone's journey. It's not a calculation. It is not a calculation. I cannot give you कि इतना ही समय लगेगा आपको, या आप एक काम करो ऐसे कर लो तो जल्दी हो जाएगा. ये एक जर्नी है, and this is not even your journey of this lifetime. आपकी कितने मुझे नाना जी के आवाज़ में वो याद आ रहा है, आपके जन्मों की यात्रा होती है, क्या बोलता है वो, मतलब बहुत आपके सोल्स, योर सोल हैज़ अ जर्नी. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपकी सोल की जर्नी उस पॉइंट तक आ चुकी है दैट यू आर रेडी टू हील योर सेल्फ इन दिस लाइफ टाइम, सम पार्ट ऑफ इट, नॉट अगर पूरा नहीं तो थोड़ा तो. सो देन और दूसरों की हो सकता है सोल जर्नी अलग हो और वो उस पार्ट पे पहुँचे ही ना हो जिस पे आप पहुँचे. So or maybe simply it's not their lifetime only to heal. Yeah, it is not. It could be, it could become. Ultimately, it's not all written. आपका कर्मा होता है, but
what I'm trying to say is, if you are in this journey, you are feeling alone, let me tell you कि आप बहुत ही एक तो brave काम कर रहे हो, so keep doing it. Keep doing it. आप उसमें fall मतलब वापस अपने old patterns में fall back करना बहुत easy होता है, बहुत Very easy होता easy. है. It is the But easiest thing in the world. आपको वो नहीं करना है, because आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको अंदर से पता है that yes, this means something, I am doing something, you know. आप वो करो, आपको रिजल्ट्स जो हैं, इंटरनल शिफ्ट्स जो हैं, जो भी जिस भी स्फीयर में आप हील कर रहे हो, आपको वो दिखेंगे. जेन्युइनली आपको वो दिखना स्टार्ट होंगे, तब आपको लगेगा. एंड व्हाट अनदर थिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, इन सच सिचुएशंस या तो होता है कि आप फॉल बैक कर लेते हो पैटर्न में, आपको लगता है यार इतना मेरे अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं ही ये करते रहूँ, लेट्स जस्ट ड्रॉप इट. लेट्स जस्ट ड्रॉप इट और छोड़ो. तो लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्टली कि आप यू कैन नेवर ड्रॉप इट, you can drop it right now, you might have to pick it up later in the following coming years or in the coming lifetimes if you But may. you have to finish the job. So You let's have to just do it. do it ना. And another thing is, या तो आप ये सोचते हो कि मैं छोड़ दो यार, क्योंकि मैं कितना ही ना, मैं कितना अकेले करूँ, या तो आपको लगने लगता है. Second thing is, you build up resentment in your system, anger and resentment in your system for the others in your family, because you, और आपको एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो आपका डेवलप होने लगता है, और जस्ट कॉल इट ईगो, जस्ट कॉल इट ईगो. You think that I know and you don't. So that complex starts developing either. There can be only 3 to 4 situations here if you are healing and no one around you is, है ना. So आपका या तो वो ईगो डेवलप हो जाएगा, या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. I know, they don't know anything. I am changing. ये तो वही कर रहे हैं, ये तो उसी पैटर्न में है. So this is I've also, seen this a lot. ये होता ही है. It is a natural part of journey. ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ होगा, सबके साथ होता है. बट आपके साथ वो उस लेवल पे ना हो, तो हम आपको अपनी जर्नी से बता रहे हैं. So it is not like that. What I have understood personally from my experience is that everyone's journey is different. इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आपको अगर कोई चीज़ समझ में आ गई और आप करने लगे हो और सामने वाला नहीं कर रहा है, आपको नहीं पता उसका क्या है इस लाइफ टाइम में, आपको नहीं पता उसके क्या कर्माज है, वो क्या करने आया है इस लाइफ में, उसका पर्पस क्या है एग्जैक्टली, और आपका है तो बी ग्रेटफुल एंड डू योर थिंग. उसमें आपको लुक डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Correct. You know, because that is not at all spiritual. Not the spiritual action to take. Let me tell you. फिर वो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो. And another thing is the resentment and anger जो build हो जाता है. Yeah. See what happens is, ये मैंने बहुत ही it was a hard pill to swallow for me. मतलब बहुत ही मुश्किल से मुझे ये चीज़ अंदर था. मैंने सोचा चलो ठीक है, okay, I understood and I'm not going to repeat it. Is that people have different journeys, as she said, and you cannot force them to evolve. You cannot. और क्या होता है कि आप उनको फोर्स करने लग जाते हो, आपको कुछ अच्छा पता चला एंड इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, आप अच्छा ही काम करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो यार मुझे पता चला है ऐसे हील हो सकता है, ऐसे कर्मास रिजॉल्व हो सकते हैं, मैं हेल्प कर देती हूँ या कर देता हूँ व्हाटएवर. तो आप अच्छे इंटेंशन से जा रहे हो, बट इफ़ द पर्सन इज़ नॉट स्पिरिचुअली रेडी, if it is not the right time for him, exactly. you cannot force it. That is the truth. Yeah, all of this happens in divine timing. Yeah, and भले ही everyone आपको, has different timing. सब इसलिए आपको लुक डाउन नहीं करना है, क्योंकि सबकी अलग टाइमिंग्स है. तो आप जब ये चीज़ अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा लोगों पे कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मैं इनको इतना समझा रही हूँ, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज अभी उनका टाइम नहीं आया है. Simple. As simple as that it is. Yeah. Because we all are on our own paths, own journeys. वो इतने entangled है that we start believing that okay, it is my responsibility that I have to do this. No, you don't have to do anything. आपका कोई responsibility नहीं, आप किसी को खींच के लाओ, उसको heal करो. This is not your responsibility. And उसके कारण फिर आप resentment और anger build करो कि आप मान लो अपने parents को समझाना चाह रहे हो. For example, you know, now their generation is most different. Common. And yeah, most common. Or maybe they have some toxic relatives and all of that stuff जो एक normal Indian household में हो सकता है. And now you are constantly trying to explain them कि नहीं, but you do this, you do that, आपने उससे बात क्यों की, आपने ये क्यों किया. Now you have to understand that आपको जो चीज़ समझ में आई है, मे बी आपका टाइम है वो समझने का,
और आपको जो भी मतलब आपका एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वो उनका नहीं हुआ है, उनका वो मे बी टाइम ना हो, मे बी हो भी, मे बी आप उनको बताओ वो ले ले, बट ये तब बात हो रही है जब आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हो रेपिटेटिवली और फिर कुछ नहीं हो रहा होता है। get angry and you only get frustrated. तो जब वो हो रहा होता है तब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी पे थोप नहीं सकते हो बेसिकली। ये यू कैन ऑलवेज, व्हाट द कोट दैट आई रियली लाइक यू नो इज that never force change, always inspire change. I genuinely love this quote because आप ट्राई करते हो ना, चलो आज से मैं हेल्दी खा रही हूँ, चलो मैं सबको हेल्दी खिलाती हूँ, आज से मैं ये करने वाली हूँ, मैं सबको कराती हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, चलो सब करो, बट नो, उसमें आपकी एनर्जी भी बहुत ड्रेन हो जाती है। yes exactly, and already आप हीलिंग जर्नी में हो, you have not completely healed yet. सो आप अपने पे, आप वो जो एनर्जी है आप ऑलरेडी एक उसमें हो ना, आप उस पे फोकस करो, प्रिजर्व दैट एनर्जी जो आपको इतनी सारी नॉलेज के साथ, और बाय गॉड्स ग्रेस मैं तो बोलती हूँ, अगर गॉड्स ग्रेस नहीं है यू वोंट गेट टू हियर एनी ऑफ दिस स्टफ ओनली. So by God's grace, if you have this knowledge and you're trying to improve your life, then you also have to protect yourself and you have to maintain healthy boundaries. Yes, very very important. And so lastly we would like to say that the suffering that you feel, that oh my god there's so much pain, there's so much suffering, it is so difficult, मैं इतना कर रही हूँ नहीं हो रहा है, ये वो जो भी आपको लग रहा है, या my environment is so this thing now I can't do it, this suffering, be very very grateful and feel that you are so fortunate to be suffering this way. Yeah, there are lots of ways people suffer in life, you know, physically, mentally, emotionally, financially. There are lots of ways to suffer. If you are suffering spiritually, you know, you are very fortunate, you are at the right because place. After that suffering comes the most beautiful phase, but to feel that, to live that, you have to go through the path. There are no shortcuts. And I would like to personally you know tell you this thing through our journey. When you're going through healing ना, पूरा you have to, जैसे बोला, आप एक ऐसे समझ लो कि पूरा अंधेरे से घर में आप एक एक जगह जाके टॉर्च लगा के देख रहे हो कि यार मेरे यहाँ पे क्या लिमिटिंग बिलीव्स है, मुझे ये हटाना चाहिए, मेरे अंदर ये गड़बड़ है, मुझे इसमें इम्प्रूव करना है, वट एवर, हर्ट, फॉरगिवनेस, एवरीथिंग, जो भी है सबका एंगर है, कुछ भी है, यू हैव टू, बट you have to use the torch and you have to see each and every corner. That process or that journey is very painful, I know, and we both know it, but once you come out of it you won't even remember. मतलब जब आप हील हो जाते हो ना, क्योंकि आप हील हो गए हो, आपको याद भी नहीं रहता उतना जो आपने पेन लिया है. And the most beautiful thing happens post healing. So you feel so much happier, you feel so much at peace, you know, you are actually aware of who you really are. 90% of the time people don't even know who they are. They know I am this, my name is this, I do this, I earn this, that's it. But when you heal, you actually get to meet yourself, and that is purely bliss. So we will wrap up. Saying on the last note, मैं ये कहना चाहूँगी कि be very fortunate, be very grateful. I'm sure if आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने वीडियो स्टार्ट किया है, I'm sure आप थक गए हो, या आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप इरिटेट हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रही हो, लॉस्ट, बट आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक होप आई होगी, आपको एक हैप्पीनेस आई होगी दैट येस आई एम डूइंग द राइट थिंग. एंड प्लीज़ आप उनसे शेयर करो जो आपको लगता है, मे बी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका हाउस होल्ड टॉक्सिक है, या जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको पता है दैट दे आर ट्राइंग टू हील बट दे आर अलोन, आप उनसे शेयर कर सकते हो. एंड आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो ऑन आवर इंस्टाग्राम @thecoffeecomfort. आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो. हमारा इंस्टाग्राम मैंशनड है, इंट्रो में भी मैंशनड है, एंड आई थिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंशनड रहता है. सो यू कैन कनेक्ट विद अस, एंड हम आपका रिप्लाई करेंगे, हम आपकी जो भी हेल्प हो सकती है हमारे एंड से वो करेंगे ज़रूर. सो येस, प्लीज़ सब्सक्राइब. लेट्स create a beautiful community of healed people together. And I would like to say that we are very proud of you.
If Yes. no one is, we are supremely and eternally proud of you for just, taking time to heal yourself, which is the most important thing. Yes. Which is actually the goal. Now you've already taken that step. अब पीछे नहीं जाना है. अब पीछे Okay. नहीं जाना है. So now we'll see you in the next one, and we hope you liked our video. We hope you found an ounce of positivity. Yeah. And yeah, thank you for watching. Bye bye.